Jai Hind everybody, welcome to biology class. So students, in this lecture we will discuss about the nervous system. We will discuss the functions of nervous system, the unit of nervous system, that is neuron, types of neuron, how the nerve impulse is transmitted. So these all things we are going to cover in this lecture. So let's start with the nervous system. The nervous system is composed of specialized tissue called nervous tissue. The nerve cell or neuron is the functional unit of the nervous system. It is the nervous system which is mainly responsible for control and coordination in complex animals. So nervous system is composed of tissues, specialized tissues, which are the cells which are specialized to perform the function of nervous system. So and the unit of nervous system is the neuron. So it is the nervous system, and this nervous system is only responsible for the control and coordination in animals. Now the functions of nervous system, it receives information from the environment through stimulus that you have already studied, to receive the information from the various bodies, it also receives information from the various organs also, and it act according to through muscles and gland. So it acts accordingly. What is the requirement of the muscle? Okay, what is the requirement of the body? So it coordinates, means you can say कि overall coordination जो है body का, that is done by this system. So neuron जो है, it is the structural and functional unit of the nervous system that I have already discussed, and these neurons, they are the specialized cells which are responsible for the transmission of nerve impulse. These neurons are only responsible for the transmission of nerve impulse. जो nerve impulse एक organ से दूसरे organ में travel करती है, it travel with the help of these neurons only. Now let's talk about the different parts of the neuron. Okay, now you can see the structure of this is the structure of a neuron. इस तरह का न्यूरॉन होता है, एंड लाइक दीज न्यूरॉन्स, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन अ बॉडी. इस तरह के मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. ओके जो कि नर्व इम्पल्स को ले जाने का, मैसेजेस को ब्रेन तक ले जाने का और ब्रेन से मसल्स तक ले जाने का काम करते हैं. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर, दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स. ओके सो लेट्स डिस्कस साइटोन, जिसको हम बोलते हैं सेल बॉडी. द सेल बॉडी और साइटोन इज समवॉट स्टार शेप्ड with many hair-like structures protruding out of the margin. These hair-like structures are known as dendrites. So dendrite receive the nerve impulse. Now you can see dendrites आपको दिख रहे हैं. These are the hair-like structures. यही impulse को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं सेंसरी ऑर्गन से. ओके दिस स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो एट द टॉप, दैट इज़ अ सेल बॉडी जिसमें न्यूक्लियस है. एंड हेयर यू कैन सी कि इसमें न्यूक्लियस तो है ही, साथ में निसल्स ग्रैन्यूल्स भी हैं. निसल्स ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और इनमें फ्री राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. सो इफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, दैट मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. Okay, and these proteins, they flow along the dendrite and the axon, and यही proteins जो हैं flow करते हैं, और साथ ही साथ they also replace the proteins which are broken down during cellular activity. So जो proteins rupture हो गए या फिर जो कि worn out हो गए, उनको भी replace करते हैं. ओके सो नेसल्स ग्रैन्यूल्स जो है, इनका मेन फंक्शन है आपका सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. नाउ नेक्स्ट पार्ट की बात करें, दैट इज़ एक्सॉन. दो ही मेन पार्ट्स होते हैं इन केस ऑफ न्यूरॉन. जो अपर है हेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम साइटोन बोलते हैं, एंड देन द लॉन्गेस्ट फाइबर आप कह सकते हो जो कि एक्सॉन कहलाती, और शॉर्टर फाइबर्स होते हैं वो डेंड्राइट्स कहलाते. तो जो एक्सॉन है दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फाइबर, और लॉन्गेस्ट फाइबर होती है. एंड एक्सॉन इट हैज़ एन इंसुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिव शीट, एक तरह की कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीट. ये इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, और जो माइलिन होता है इट इज़ अ
इट इज़ मेड अप ऑफ फैट एंड प्रोटीन, फैट और प्रोटीन का होता है, और ये इंसुलेट करता है एक्सॉन को अगेंस्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। एक तरह से ये प्रोटेक्शन का काम करता है, यू कैन से। Okay, so it is clear that both dendrites and axon they arise from the सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। सो दोनों ही सेल बॉडी से अराइज होते हैं। डेंड्राइट्स जो हैं वो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, और एक्सॉन्स जो हैं वो आप कह सकते हो कि लॉन्गेस्ट फाइबर्स होते हैं इन न्यूरॉन्स। नाउ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं, 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड एसोसिएशन न्यूरॉन्स, जिसको रिले न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं दे ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स, जिनको कि हम रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो इम्पल्स हैं उनको ले जाते हैं कहाँ तक, रिसेप्टर से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक इनका ले जाने का काम है। नाउ मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम है, दे ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स द मसल सेल्स। इनका काम है कि जो भी मैसेज ब्रेन के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज गया, उसके बाद वो जो भी मैसेज भेजते हैं वापस एक न्यूरॉन आती है ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से, जो कि हमारे मसल्स तक जाती है और मसल्स को इंस्ट्रक्ट करती है द एक्शन दैट हैज़ टू बी टेकन। ओके, एंड द थर्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन इज़ रिले न्यूरॉन, जो कि दोनों में ही प्रेजेंट होती है, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और ये एक लिंक है, ये कनेक्शन है बिटवीन दीज टू न्यूरॉन्स। ये लिंक की तरह काम करती है, क्योंकि यहीं पे आके जो न्यूरॉन्स हैं वो जॉइन होती हैं, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज को लेके जाएंगी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर रिले न्यूरॉन्स जो है सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट करेगी, और मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज जो है हमारे मसल्स तक जाएगा, एंड मसल्स विल एक्ट अकॉर्डिंगली। नाउ जहाँ पे 2 न्यूरॉन्स आपस में ज्वाइन करते हैं, या तो हम ये कह सकते हैं जो एक्सॉन पार्ट होता है, दैट यू कैन सी, ये आपको दिख रहा है लास्ट में एक्सॉन्स दिख रहे हैं, एक्सॉन टर्मिनल नॉब लाइक साइनेप्टिक नॉब्स देख रहे हैं, ये एंड है, दिस इज़ द एंडिंग पॉइंट ऑफ वन न्यूरॉन। अब यहीं से जो है सेकेंड न्यूरॉन स्टार्ट होता है, तो उसके डेंड्राइट्स जो हैं, सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स जो हैं वो एक्सॉन टर्मिनल्स के को क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं, वो एक साइनैप्स बनाते हैं, हम ये कह सकते हैं। सो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन विद डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन, ठीक है, उसको बोलते हैं साइनैप्स। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं दोनों के बीच में। ओके, नाउ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये कौन सा पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे मसल्स जो हमारी होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं, जब वो मोटर न्यूरॉन के कांटेक्ट में आते हैं, मोटर न्यूरॉन नर्व्स इम्पल्स लेके आती है, और वो कहाँ पे अटैच हो जाते हैं, मसल्स फाइबर में, जिससे कि मसल्स जो हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन है स्टिमुलस के अगेंस्ट एक्ट करें। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है मसल फाइबर और डेंड्राइट्स में, मसल फाइबर और मोटर न्यूरॉन्स में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, मसल एंड नर्व्स के बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। Now how the nerve impulse is transmitted, so that now you all have understood, I suppose, कि कैसे ट्रांसमिशन होगा। डेंड्राइट्स जो भी रिसेप्टर्स होंगे वहाँ पे डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे, वो रिसीव करेंगे रिसेप्टर ऑर्गन के थ्रू, वो रिसीव करेंगे स्टिमुलस को। देन दीज डेंड्राइट्स ट्रांसफर द मैसेज टू cell body, and cell body transfer it to axon, then axon at the terminal there are axon endings, आपने देखा था फिगर में, जिसको हमने axon endings बोला था, और ये axon endings जो हैं वो साइनैप्स बनाएंगी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ। तो इस तरह क्या होगा, एक मैसेज जो है, एक ट्रांसमिशन, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स पूरे में ट्रांसमिट होगा। मीन्स सारे जो भी न्यूरॉन्स जितने भी प्रेजेंट हैं वो एक के बाद एक कनेक्ट होते जाएंगे, एंड दैट मैसेज इज़ ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन और फ्रॉम द ब्रेन टू द
मसल्स। सो ये दोनों ही केस में इसी तरह होगा और इस तरह जो है हम किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिएक्ट कर सकेंगे। सो इन दिस वे द इम्पल्स ट्रांसमिशन अकर। ओके, नाउ ये जो अब ये कैसे, एक जो हमने साइनैप्स की बात की जहाँ पे जो है एक नर्व, एक का एक्सॉन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से कांटेक्ट बनाता है। अब ये कैसे कांटेक्ट बनाता है, कैसे इम्पल्स जो है वहाँ एक्सॉन एंडिंग से वो दूसरे डेंड्राइट में जंप कर जाती है, ठीक है, तभी तो वो आगे मूव होगी। तो क्या होता है, जो एक्सॉन टिप्स होते हैं वहाँ पे एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। एक केमिकल रिलीज़ होता है और ये केमिकल जो रिलीज़ होता है, इट क्रॉस द साइनैप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टू रीच द नेक्स्ट। ये केमिकल जो रिलीज़ होता है वो हेल्प करता है एक न्यूरॉन से इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट करने में। सो दैट द नेम ऑफ दैट केमिकल इज़ न्यूरो ट्रांसमीटर्स। रिलीज़ होते हैं कहाँ से, एक्सॉन एंडिंग से रिलीज़ होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं इम्पल्स को एक्सॉन एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जंप करने में। ओके, सो इन दिस वे द इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड from brain or spinal cord to the effector's organ. Okay, so this is all about the nervous system, introduction, function, structure of neuron, types of neurons. So this is all about nervous system. Thank you, students.